اسلامک شارٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ سابات کا آتش پرست حاکم شیرزاد دانشمند اور دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے بھانپ لیا کہ اس کی فوج میں جو لڑنے کا جذبہ موجود تھا وہ ماند پڑ گیا ہے۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس کی فوج پہلی شکستوں کی بھی ڈری ہوئی ہے۔ چنانچہ مزید قتل و غارت کو روکنے کے لیے اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 2 امراء کو قلعے کے باہر بھیجا۔ خندق کے قریب آ کر ان 2 امیروں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ ان کا سالار اعلیٰ کہاں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ آ گئے۔ شیرزاد کے بھیجے ہوئے 2 آدمیوں میں سے ایک نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، ہمارے امیر شیرزاد نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسی شرائط پر جو ہمارے لیے قابل قبول ہوں۔ اگر صلح ہو جائے تو شیرزاد اپنی فوج کو ساتھ لے کر انبار سے چلا جائے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، شیرزاد سے کہو کہ شرطیں منوانے کا وقت گزر گیا ہے۔ اب شرطیں ہماری ہوں گی اور تم لوگ ہتھیار ڈالو گے۔ دونوں آدمی واپس چلے گئے اور شیرزاد کو خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ شیرزاد نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا۔ ایک سالار نے کہا، ہم اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، مسلمان خندق سے آگے نہیں آ سکتے۔ شیرزاد نے سر ہلایا۔ یہ ایسا اشارہ تھا جس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ شہر کا دفاع جاری رکھنا یا خالد رضی اللہ عنہ کے پیغام پر غور کر کے کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سالاروں نے اس کے اشارے کو جنگ جاری رکھنے کا حکم سمجھا اور وہ شہر پناہ پر آ گئے۔ 1000 مسلمان تیر انداز جنہوں نے انبار کے 2000 سے زائد سپاہیوں کی آنکھیں نکال دی تھیں پیچھے ہٹ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہر کے ارد گرد ایک اور چکر لگایا۔ اب وہ صرف خندق کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خندق پار کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی لیکن اتنی کم نہیں تھی کہ دور سے گھوڑا دوڑاتے لاتے اور وہ خندق پھانپ جاتا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اپنی فوج کے ساتھ جتنے اونٹ کمزور یا بیمار ہو گئے ہیں انہیں آگے لے آؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان اونٹوں کو ذبح کر کے خندق میں اس جگہ پھینکتے گئے جہاں خندق کم چوڑی تھی۔ اتنے اونٹ ذبح کر کے خندق میں ترتیب سے پھینک دیے گئے کہ ایک پل بن گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ نے تمہارے لیے گوشت اور ہڈیوں کا پل بنا دیا ہے، اب ہم خندق پار کر سکتے ہیں۔ اونٹوں کا یہ پل ہموار نہیں تھا، ان کے ڈھیر پر چلنا خطرناک تھا۔ پاؤں پھسلتے تھے لیکن گزرنا بڑی تیزی سے تھا۔ اشارہ ملتے ہی پیادہ مجاہدین کودتے پھلانگتے اس عجیب و غریب پل سے گزرنے لگے۔ چند ایک مجاہدین پھسلے اور گرے اور وہ پانی میں سے نکل کر اونٹوں کی ٹانگیں گردنیں وغیرہ پکڑتے اوپر آ گئے۔ شہر پناہ سے دشمن کے تیر اندازوں نے تیروں کا مہ برسا دیا۔ ادھر آنکھیں پھوڑنے والے مسلمان تیر اندازوں نے بڑی تیزی اور مہارت سے تیر اندازی جاری رکھی۔ اب ان کی تعداد 1000 نہیں خاصی زیادہ تھی۔ اونٹوں کے پل سے گزرنے والوں میں سے کئی مجاہدین تیروں سے زخمی ہو رہے تھے لیکن وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح خندق سے پار جاتے اور پھیلتے رہے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اقدام غیر معمولی طور پر دلیرانہ تھا۔ وہ زخمی تو ہوئے، شہید بھی ہوئے، لیکن انبار کی فوج پر اس اقدام کا جو اثر ہوا وہ اس کے سپاہیوں کے لڑنے کے جذبے کے لیے مہلک ثابت ہو رہا تھا۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی غالب تھی۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا یہ عجیب طریقہ دیکھا کہ اپنے اونٹ ذبح کر کے پل بنا دیا ہے اور تیروں کی بوچھاڑوں میں اس پل سے گزرنے لگے تو دیوار سے برسنے والے تیروں میں کمی آ گئی۔ دشمن کے تیر انداز زخمی ہو کر کم ہو رہے تھے اور ان میں بھگدڑ کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ خندق پھلانگنے والا صرف ایک دستہ تھا۔ اس دستے کا جوش و خروش اس وجہ سے بھی تھا کہ خود خالد رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے اور سب سے پہلے مرے ہوئے اونٹوں پر سے گزرنے والے خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ تیر ان کے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے اور ان کے قدموں میں زمین میں لگ رہے تھے، مگر خالد رضی اللہ عنہ یوں بے پرواہ تھے جیسے ان پر بارش کے قطرے گر رہے ہوں، اور اس کی گرج میں اللہ کی برکت تھی۔ شہر کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ شہر پناہ سے ان کے زخمی سپاہیوں کو اتارتے تھے تو لوگ ان کی گردنوں میں، چہروں میں اور سینوں میں 1-1، 2-2 اور 3-3 تیر اترے ہوئے دیکھتے۔ زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور شہر میں خوف و ہراس زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، سمجھوتا کر لو، صلح کر لو، دروازے کھول دو۔ شیرزاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ دانشمند آدمی تھا۔ اس نے جب لوگوں کی آہوزاری سنی اور جب بچوں اور عورتوں کو خوف کی حالت میں پناہوں کی تلاش میں بھاگتے دوڑتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ معصوم بے گناہ مارے جائیں گے۔
इन्हें बचाने का उसके पास एक ही जरिया था कि हथियार डाल दे। उसने अपने सालार आला को बुलाकर कहा कि वो मजीद खून खराबा रोकना चाहता है। सालार आला ने कहा, नहीं, अभी कोई फैसला न करें, मुझे एक कोशिश कर लेने दें। शेरजाद खामोश रहा। सालार आला शहर पनाह के ऊपर अपनी सिपाह की कैफियत देख रहा था जो बड़ी तेजी से मखदूश होती चली जा रही थी। उसने ये भी देख लिया था कि मुसलमान खंदक उबूर कर आए हैं। उसने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। उसने एक दस्ता चुने हुए सिपाहियों का तैयार किया और किले का दरवाजा खोलकर उस दस्ते को बाहर ले आया। उस दस्ते ने उन मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जो खंदक उबूर कर आए थे। खंदक के दूसरे किनारे खड़े मुसलमानों ने दुश्मन के उस दस्ते पर तीर चलाने शुरू कर दिए। उस दस्ते का मुकाबला मुसलमानों के ऐसे दस्ते के साथ था जिसके कायद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। मुसलमानों के तीरों की बौछारों से आतिश परस्तों के दस्ते की तरतीब और यकसुई खत्म हो गई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस दस्ते को इस तरह लिया कि अपने दस्ते को दीवार की तरफ रखा ताकि खंदक की तरफ से मुसलमान तीरंदाज दुश्मन पर तीर बरसाते रहें। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उस दस्ते को खंदक की तरफ धकेलना चाहते थे। घमसान का मार्का हुआ। आतिश परस्तों के कई सिपाही खंदक में गिरे और बाकियों के कदम उखड़ गए। उस दस्ते के सालार ने इस डर से दरवाजा बंद करवा दिया कि मुसलमान अंदर आ जाएंगे। दरवाजा बंद होते होते दुश्मन के उस दस्ते के बचे कुचे सिपाही भागकर अंदर चले गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु शहर पनाह का जायजा लेने लगे। वो मुजाहिदीन को उस दीवार पर चढ़ाना चाहते थे जो आसान नजर नहीं आता था। उन्हें मालूम नहीं था कि दीवार की दूसरी तरफ ईरानी फौज और शहर के लोगों की हालत क्या हो चुकी है। किले का दरवाजा एक बार खुला। अब दरवाजे में सिर्फ एक आदमी नमूदार हुआ। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। उसने हाथ ऊपर करके बुलंद आवाज से कहा कि वो शहर का एलची है और सुलह की बात करने निकला है। उसके साथ ही शहर पनाह से तीर बरसने बंद हो गए। जब उसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ले गए तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे पूछा, ऐ आग को पूजने वाले, अब तू क्या खबर लाया है? क्या ज़रतुश्त ने तुम लोगों से नजरें फेर नहीं ली? क्या अब भी तुम लोग अल्लाह को नहीं मानोगे? एलची ने कहा, ऐ अहले मदीना, मैं किसी और सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं हाकिम साबात शेरजाद का एलची हूँ। शेरजाद ने कहा है कि तुम लोग उसे और अहले फारिस को शहर से जाने की इजाजत दे दो तो शहर तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। तबरी और वाक़दी लिखते हैं कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ये शर्त भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर शहर की दीवारों की बुलंदी देखी और सोचा कि उस पर किस तरह चढ़ा जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाकिम साबात शेरजाद से कह दो कि खालिद बिन वलीद उस पर रहम करता है। उसे कहो कि वो फारिस के फौजियों को साथ लेकर शहर से निकल जाए, लेकिन वो उन घोड़ों के सिवा जिन पर वो सवार होंगे अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकेंगे। वो अपना सब माल अमवाल पीछे छोड़ जाएंगे और वो हमारी फौज के सामने से गुजरेंगे। अगर उसे ये शर्त मंजूर न हो तो उसे कहना कि तैयार हो जाए उस तबाही के लिए जो उसने पहले कभी नहीं देखी। एलची वापस चला गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहर के इर्द गिर्द अपना हुक्म पहुंचा दिया कि तीरंदाजी रोक ली जाए। कुछ देर के बाद शहर का दरवाजा एक बार फिर खुला। बहुत से सिपाही बड़ी मोटी लकड़ी का एक 5-6 गज चौड़ा और बहुत लंबा तख्ता उठाए बाहर निकले। तख्ते के साथ रस्से बंधे हुए थे। उन्होंने तख्ता खंदक के किनारे पर खड़ा किया और रस्से पकड़ लिए। फिर ये रस्सा आहिस्ता आहिस्ता खंदक पर गिरने लगा और उसका ऊपर वाला सिरा खंदक के बाहर वाले किनारे पर जा पड़ा। ये पुल था जो शेरजाद और उसकी फौज के गुजरने के लिए खंदक पर डाला गया था। सबसे पहले जो घोड़ा बाहर आया उसकी सच धज बताती थी कि शाही अस्तबल का घोड़ा है। उसका सवार बिला शक व शुबा हाकिम साबात शेरजाद था। उसके पीछे उसकी बची कुची फौज बाहर निकली। प्यादे भी थे, सवार भी। उनमें जख्मी भी थे जो अपने साथियों के सहारे चल रहे थे। वो अपने मरे हुए साथियों की लाशें जहां थीं वहीं छोड़ गए। ये शिकस्त खुर्दा फौज मातमी जुलूस की तरह जा रही थी और मुसलमान खामोशी से उस जुलूस को देख रहे थे। किसी ने उनका मजाक न उड़ाया, फप्ती न कसी, फतह का नारा तक न लगाया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार एक तरफ खड़े देख रहे थे। वो थके हुए नजर आते थे, लेकिन चेहरे पर फतह की रौनक और जबान पर अल्लाह के शुक्राने के कलिमात थे। ये जुलाई 633 ईस्वी का एक दिन था। जब आखिरी सिपाही भी निकल गया तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुजाहिदीन के आगे आगे शहर के दरवाजे में दाखिल हुए। आगे शहर के उमरा और रऊसा दस्तबस्ता खड़े थे। शहर के लोगों का शोरगुल सुनाई दे रहा था। इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, वो आ गए हैं, मुसलमान आ गए हैं, भागो छुप जाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से उतरे। अंबार के उमरा वगैरह ने उन्हें तोहफे पेश किए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमरा से कहा, शहर के लोग हमसे डर क्यों रहे हैं? इन्हें कहो कि इन पर कोई इल्जाम नहीं। हमने इस शहर को फतह किया है, शहर के लोगों को नहीं।
इन्हें कहो कि हम अमन और दोस्ती लेकर आए हैं। हम जिजिया जरूर लेंगे, लेकिन बिला वजह किसी की जान नहीं लेंगे। हम किसी की बेटी पर अपना हक नहीं जताएंगे, किसी के मालो दौलत को हाथ तक नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ उनके माल अमवाल को अपने कब्जे में लेंगे जो हमसे शिकस्त खाकर चले गए हैं। जाओ अपने लोगों को हमारी तरफ से अमन व सुकून का पैगाम दो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को एक हुक्म तो ये दिया कि जो लोग उनके खिलाफ लड़कर चले गए हैं उनके घरों से कीमती सामान उठाकर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, और दूसरा हुक्म ये कि शहर में घूम फिर कर यहीं के लोगों को दोस्ती और अमन का तासुर दिया जाए, और ये भी कि लूट मार नहीं होगी। शहर पनाह पर गिद्ध उतर रहे थे। वहाँ आतिश परस्त सिपाहियों की लाशें पड़ी थी। शदीद जख्मी बेहोशी की हालत में इधर उधर पड़े थे। शहर की फजा में मौत की बू थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उस मकान में गए जिसमें शेरजाद रहता था। वो तो महल था। दुनिया की कौन सी आसाइश और ज़ेबाइश थी जो उस महल में नहीं थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जो जमीन पर सोने के आदी थे, हैरान हो रहे थे कि एक इंसान ने अपने आप को दूसरे से बरतर समझने के लिए कितनी दौलत खर्च की है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि बेशकीमत अशिया को माल गनीमत में शामिल कर लिया जाए और खजाना ढूंढा जाए। खजाना मिलते देर न लगी। उसमें सोने और हीरे जवाहरात के अंबार लगे हुए थे। इर्द गिर्द के कबीलों के सरदार इताअत कबूल करने के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आने लगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिज़िये की रकम मुकर्रर करके उसकी वसूली का हुक्म दिया। इस दौरान जासूस ने आकर बताया कि फारिस की फौज ऐनुल तिमर में इकट्ठी हो गई है और अब मुकाबला बड़ा सख्त होगा। मदाइन में आतिश परस्त शहनशाहत का महल उसी तरह खड़ा था जिस तरह अपने शहनशाहों की जिंदगी में खड़ा रहता था। ये किसरा का वो महल था जिसे जंगी ताकत की अलामत समझा जाता। उसके बाहर वाले दरवाजे के दाएं बाएं दो बब्बर शेर बैठे रहते। ये किसरा की हैबत और दहशत की अलामत थे, लेकिन ये गोश्त पोस्त के नहीं पत्थरों के तराशे हुए मुजस्मे थे। उन मुजस्मों और महल के दरमियान एक मीनार खड़ा था जो ऊपर से गोल और मीनार की गोलाई से ज्यादा बड़ा था। उस जगह अलाव हर वक्त दहकता रहता था। जब ये मीनार तामीर हुआ तो उसके ऊपर पुरोहितों ने ये आग जलाई थी। कई नस्लें पैदा हुई और अगली नस्लों को जन्म देकर दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन ये अलाव दहकता रहा। उससे उठता हुआ धुआं महल की फजा में यूं मंडलाता रहता था जैसे जरतुश्त ने उस महल को अपनी पनाह में ले रखा हो। अलाव अब भी दहक रहा था। उसका धुआं अब भी किसरा के महल में फजा में मंडला रहा था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे ये धुआं महल को पनाह में लेने की बजाय खुद पनाह ढूंढ रहा हो। महल जो दूसरों के लिए कभी हैबत का निशान था, अब खुद उस पर हैबत तारी थी। उसकी शान शौकत पहले जैसी ही लगती थी। जाहो जलाल भी पहले जैसा था, मगर उसके मकीन अब साफ तौर पर महसूस करने लगे थे कि इस महल पर आसिब का असर हो गया है। मौत की दबी दबी हंसी दिन रात सुनाई देती। एक गैबी हाथ किसरा के ज़वाल की दास्तान उसके खानदान के खून से लिख रहा था। कहाँ वो वक्त के इस तख्त से दूसरों की मौत के परवाने जारी होते थे। कहाँ ये वक्त के उर्द शेर के मरने के बाद उस तख्त पर जो बैठता था वो पुरस्रार तौर पर कत्ल हो जाता। 2-4 सालार थे जो फारिस की लरसती हुई डोलती हुई इमारत को कुछ देर और थामे रखने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की नौखेज हसीनाएं अब भी उस महल में मौजूद थीं, मगर रक्स की अदाएं नहीं थीं। साज खामोश थे, नगमे चुप थे। शराब की बू पहले की तरह मौजूद थी, मगर उसमें खून की बू शामिल हो गई थी। पहले जहां ऐशो इशरत के लिए शराब पी जाती थी, अब अपने आप को फरेब देने के लिए और तल्ख हकाइक से फरार की खातिर जाम पर जाम चढ़ाए जा रहे थे। अब मदाइन का महल तख्तो ताज के हुसूल का मैदान जंग बन गया था। दरपर्दा जोड़ तोड़ हो रहे थे। उसी महल से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी सिपाह पर तंज के ये तीर चले थे कि अरब के बद्दुओं और लुटेरों को फारिस की शहनशाही में कदम रखने की जुर्रत कैसे हुई। वो कभी वापस न जाने के लिए आए हैं, उन्हें मौत यहाँ ले आई है, मगर अब फारसियों को खुद अपनी शहनशाही में कदम जमाए रखने की जुर्रत नहीं हो रही थी। दूसरों पर दहशत तारी करने वाले तख्तो ताज पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की और मदीना के मुजाहिदीन की दहशत तारी हो गई थी। मदाइन में अब शिकस्त और पसपाई के सिवा कोई खबर नहीं आती थी। जुलाई 633 ईस्वी के एक रोज मदाइन में आतिश परस्तों को अपनी एक और शिकस्त की खबर मिली। खबर लाने वाला कोई कासिद नहीं बल्कि हाकिम साबात शेरजाद था और उसके साथ उसकी शिकस्त खुर्दा फौज के बेशुमार सिपाही थे। उनका इस्तकबाल किसरा के नामवर सालार बहमन जाज़ोया ने किया। उनकी हालत देखकर ही वो जान गया कि वो बहुत बुरी शिकस्त खाकर आए हैं। बहमन जाज़ोया ने कहा, शेरजाद तुम्हारे पास हथियार भी नहीं, मैं तुमसे क्या पूछूं? शेरजाद ने थकी हारी आवाज में कहा, तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए, तुम भी तो उनसे लड़े थे, क्या तुम पसपा नहीं हुए? क्या तुम कलाबंद नहीं थे? बहमन जाज़ोया ने कहा,
किले के इर्द गिर्द खंदक थी। मुसलमान उड़ तो नहीं सकते, इतनी चौड़ी खंदक उन्होंने कैसे अबूर कर ली? शेरजाद ने उसे तफसील से बताया कि मुसलमानों ने उसे किस तरह शिकस्त दी है। शेरजाद ने कहा, मेरे सालार नाअहल और बुज़दिल निकले और मुझसे ये गलती हुई कि मैंने ईसाइयों पर भरोसा किया। मुझे बताया गया था कि ये जबरदस्त लड़ाके हैं, लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं कि लड़ाई होती क्या है। बहमन जाज़ोया ने कहा, तुम शायद ये नहीं देख रहे कि तुम पसपा होकर मुसलमानों को अपने पीछे ला रहे हो, और तुम्हें ये नहीं मालूम कि मदाइन में क्या हो रहा है। शाही खानदान तख्त की विरासत में आपस में लहूलुहान हो रहा है। फारिस की आबरू के मुहाफिज हम 4 सालार रह गए हैं। शेरजाद ने कहा, और जब तख्त सालारों की तहवील में आ जाएगा तो वो शाही खानदान की तरह एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। फिर राजदारी के लहजे में कहने लगा, क्या तुम अभी तक महसूस नहीं कर सके कि फारिस की शहनशाही का जवाल शुरू हो चुका है? क्या हमारा सूरज डूब नहीं रहा? बहमन जाज़ोया ने कहा, शेरजाद, उस हलफ को न भूलो जो हमने ज़रतुश्त के नाम पर उठाया था कि हम फारिस को दुश्मन से बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तुमने गलती की है जो यहाँ चले आए हो। शेरजाद ने पूछा, कहाँ जाता? बहमन जाज़ोया ने कहा, ऐनुल तिमर। ऐनुल तिमर अभी महफूज है, बल्कि ये हमारा एक महफूज अड्डा है। कलादार मेहरान बिन बहराम लड़ना और लड़ाना जानता है। इत्तला मिली है कि उसने चंद एक बद्दुई कबीलों को भी ऐनुल तिमर में इकट्ठा कर लिया है। अगर मुसलमानों ने उधर का रुख किया तो ऐसे ही होगा जैसे वो पहाड़ से टकराए हों। उनमें पसपा होने की भी हिम्मत नहीं होगी। वो मुसलसल लड़ते आ रहे हैं। वो जिन्नात तो नहीं, आखिर इंसान हैं। उनमें पहले वाला दमखम नहीं रहा। शेरजाद ने कहा, लेकिन मैंने उन्हें ताजा दम पाया है। मैंने उनमें थकन और कम हिम्मती के कोई आसार नहीं देखे, और बहमन मुझे शक होता है जैसे वो नशे में बदमस्त थे। ऐसी बेजिगरी से वही लड़ सकता है जिसने कोई नशा कर रखा हो। बहमन जाज़ोया ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका अकीदा सही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उन पर अपने अकीदे का नशा तारी है। हम अपनी सिपाह में ये ज़हनी कैफियत पैदा नहीं कर सकते। शेरजाद ने कहा, तुम कह रहे थे कि मुझे ऐनुल तिमर चले जाना चाहिए। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और अपनी सिपाह को मुनज़्ज़म कर लें, फिर मुसलमानों पर जवाबी हमले की तैयारी करें? बहमन जाज़ोया ने कहा, अब तुम्हारा ऐनुल तिमर जाना भी ठीक नहीं। हमें सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। ऐनुल तिमर अंबार के जुनूब में फरात के मशरकी किनारे से कई मील दूर हटकर अंबार की तरह एक बड़ा तिजारती मरकज हुआ करता था। आज सिर्फ एक चश्मा उसकी निशानी रह गई है। उस जमाने में उस शहर का तिजारती राब्ता दुनिया के चंद एक दूसरे मुल्कों के साथ भी था। कला मजबूत और शानदार था। वहाँ का हाकिम और कलादार एक फारसी सालार मेहरान बिन बहराम चौबैन था। मेहरान देख रहा था कि मुसलमान फारिस की फौज को हर मैदान में शिकस्त देते आ रहे हैं, और जो कला उनके रास्ते में आता है वो रेत का घरौंदा साबित होता है। उसने तहिया कर लिया था कि मुसलमानों को शिकस्त देकर फारिस की तारीख में नाम पैदा करेगा। उसने ये भी देख लिया था कि फारिस की फौज मुसलमानों को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही है, बल्कि सिपाहियों ने अपने ऊपर मुसलमानों की दहशत तारी कर ली है। उस खतरे को खत्म करने और अपनी नफरी को बढ़ाने के लिए उसने ईसाई और दीगर अकीदों के कबीलों को ऐनुल तिमर में इकट्ठा कर लिया था।